Unacademy. Let's crack it. अभिषेक जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। Sir, I have done my graduation from Himachal Pradesh National Law University, Shimla in 2022, and currently I am pursuing LLM from Banaras Hindu University. ओके, हिमाचल नेशनल यूनिवर्सिटी कब स्टैब्लिश हुई थी? Sir, in 2016. 2016। ओके, आपका इंटरेस्ट क्रिमिनल लॉ में है या सिविल लॉ में? वैसे तो सर मैंने सारे सब्जेक्ट्स को अपने स्टडीज के दौरान कवर किया है, बट थोड़ा सा मैं जो कंफर्टेबल हूँ क्रिमिनल लॉ में सर। क्रिमिनल लॉ में, ठीक है। आप सीपीसी में रेस्टिट्यूशन का कंसेप्ट बताइए। सर रेस्टिट्यूशन में बेसिकली ये होता है कि कोई भी पार्टी अगर एक्स्ट्रा या अनड्यू एडवांटेज कुछ भी ले लेती है तो उसको उसकी बेसिक जो भी पोजीशन होती है वहां पे रिस्टोर किया जाता है। ये सर सेक्शन 144 ऑफ सीपीसी में दिया गया है। ओके, व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर लॉफुल इन क्रॉस एग्जामिनेशन? Sir, in cross examination basically those questions which are not scandalous or in scandalous questions are not allowed, and which suggest any answer or party wishes to accept are not allowed. I am asking which questions are allowed. Sorry sir, I am not able to recall right. Okay. What are the modes of proving a signature? Sorry sir, I am not able to recall right now. What do you understand by the term redemption? Yes sir. Sir, redemption is basically used under Transfer of Property Act. It suggests that when principal money of the mortgagor is due and he is ready and willing to pay the money, then the property that has been mortgaged has to be redeemed by the mortgagor. Okay, can partial redemption be done? Sir, as far as I remember right now, sir, I think no, sir. Okay. Give two examples of appeal from orders. Yes, sir. Sir, when a compensatory cost has been given to a person under section 35, as well as sir. Are you sure it's 35? 35A, sir. 35A. Okay. Second. Sorry, sir, I am not. The second order. Okay. Last question. What do you understand by contingent interest? Yes, sir. Sir, contingent interest are the interests which are not immediately transferred when the property is transferred to any person. It depends on the happening or non-happening of the event.
contingent interest be attached and sold in execution of a decree? No, sir. No. Okay, thank you. Ashok sir. Yes. When bail can be refused in bailable offense? Sorry, sir, I didn't get your question. When bail can be refused in bailable offense? Bailable offense में भी किन परिस्थितियों में बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है? यस सर, अगर बेलेबल ऑफेंस में जो कंडीशंस लगाए गए हैं, अगर वो पर्सन कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है तो फिर उस बेलेबल ऑफेंस को भी रिफ्यूज किया जा सकता है सर. Okay. What is the distinction between res judicata and res sub judice? Yes sir. Sir, in res sub judice and res sub judice has been provided under section 10 of CPC. ये कहता है कि सर जब भी कोई मैटर ऑलरेडी पेंडिंग है तो सर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट तो हो जाएगी, बट इट बार द ट्रायल ऑफ द सूट. But sir, res judicata is a principle which suggests that if a case has already been decided by the court on merits, then on the same cause of action another suit shall not be instituted, and the rest will apply. Yes. Section 279 IPC and Section 304A IPC में कितनी सजा का प्रावधान है? Sorry sir, I am not able to recall the punishment. क्या ये समन मामला है या वारंट मामला है? Sorry sir, I am not able to recall. क्या इसमें प्रोबेशन दिया जा सकता है? सर प्रोबेशन आई थिंक दिया जा सकता है. जहां तक सर मेरी उम्मीद है कि ये 7 साल से कम का है सजा, तो प्रोबेशन इसमें अलाउड हो सकता है सर. अच्छा. धारा 457 और 323 आईपीसी का एक शामिल चार्ज लगाया गया है. उसके अंदर कन्विक्शन होने पर 457 में कितनी सजा का प्रावधान है? सॉरी सर, मैं एग्जैक्ट अभी पनिशमेंट रिकॉल नहीं कर पा रहा. आप ये बताइए, एक परिवार का एक बड़ा लड़का, वो ऑल ऑफ सडन उसकी डेथ हो जाती है और वो उसके पीछे उसके मदर है, फादर है, उसकी वाइफ है, 2 भाई है, 2 बहनें हैं, इनको छोड़ करके गुजरता है. तो उसकी जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो किस तरीके से विभाजित होगी? मदर, फादर, वाइफ, 2 भाई और 2 बहनें, ये पीछे हैं, 7 जने हैं और वो गुजर गया है और निर्वसित गुजरा है. सर अभी तक जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाती है वो क्लास 1 ईयर्स को दी जाती है. तो उसमें विडो को सबसे पहले राइट किया जाएगा सर. विडो को, जो उनकी वाइफ है, उनको दिया जाएगा सर सबसे पहले प्रायोरिटी. इसके बाद सर अगर कोई होंगे तो उनको जो मदर है, फादर है, उनको बाद में सर दी जाएगी क्लास 2 में. मदर और फादर क्लास 1 में है या क्लास 2 में है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. आप ये बताइए, इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर सोर्न एनिमीज, ये किस सुप्रीम कोर्ट के किस जजमेंट में हेल्ड किया गया था? सर ये ईपी रोहप्पा के केस में बोला गया था. बहुत बढ़िया. Which case is popularly known as pavement dwellers case? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ. What do you mean by interlocutory orders? Sir, interlocutory orders are basically In reference to criminal cases. In reference to criminal cases. Sir, criminal cases के रिकॉर्डिंग सर मैं अभी नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ. Whether revision can lies against order framing of the charges. सॉरी सर, मैं क्वेश्चन को नहीं समझ पाया. फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज के अगेंस्ट में रिवीजन लाई करती है? नहीं सर. नहीं. ओके ओके. यस, धनसुख जी सर. थैंक यू सर. आपने अभी सर के सवाल का एक आंसर दिया कि सर ने पूछा कि बेलेबल मामलों के अंदर बेल रिफ्यूज की जा सकती है कि नहीं जा सकती है. तो रिफ्यूजल टू ग्रांट द बेल और कैंसिलेशन ऑफ बेल, क्या दोनों में अंतर है? सर जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं.
रिफ्यूजल में सर जो भी कंडीशन लेट डाउन किए गए थे उसको देखा जाता है, और कैंसिलेशन अगर सर कोई बेल दे दी गई है और फिर उसको कैंसिल करना है तो उसमें कोर्ट को ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ता है सर। आई थिंक इसमें एक केस है संजय वर्सेस सिटी ऑफ दिल्ली का, जिसमें सर गाइडलाइंस दिए गए थे इसके रिगार्डिंग। आप और हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यस सर। उस कॉन्ट्रैक्ट की ऑब्लिगेशन को डिस्चार्ज करने के लिए मैं कब बाउंड हूं, कॉन्ट्रैक्ट से पहले या कॉन्ट्रैक्ट के बाद? कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने से पहले या बाद में? 1 जनवरी को कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन को डिस्चार्ज करने के लिए व्हेन आई विल बी बाउंड, आफ्टर 1 जनवरी या बिफोर 1 जनवरी? सर बिफोर 1 जनवरी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस में लेट डाउन किए गए हैं उसको मेरे को सर फुलफिल करना पड़ेगा। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने की डेट से पहले मैं लायबल हो जाऊंगा? नहीं सर, साइन करने के डेट से पहले लायबल नहीं होंगे सर, लेकिन जिस तो दिन वो साइन किया जाता है उसके बाद एक ऑब्लिगेशन रेज होती है कि जैसे ही प्रॉमिस बाद में रेज होती है, पहले तो नहीं होती। तो नहीं सर, कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन कभी भी डेट ऑफ एग्रीमेंट से पहले नहीं हो सकती, करेक्ट? यस सर। तो जो बेल की कंडीशन है वो बेल ग्रांट करने से पहले कैसे होती है, एक्सप्लेन करो। नहीं सर, ये नहीं हो सकती सर, कंडीशन तो अब सर आपने पहले जो सर के सवाल का जवाब दिया था उसको आप चेंज करना चाहोगे? सर जहां तक मैं सर के क्वेश्चंस को समझ पाया था, सर का मतलब सर का क्वेश्चन बड़ा क्या था, रिफ्यूजल टू ग्रांट ऑफ बेल इन बेलेबल मैटर्स। यस सर। सर एज फार एज आई रिमेम्बर सर, मेरा भी ये मैं इसी पॉइंट पे स्टिक करूंगा सर कि अगर वो फुलफिल नहीं करता है तो सर उसकी बिल को रिजेक्ट किया जा सकता है। चलिए आपकी कुछ हॉबीज बताएं। सर मेरा हॉबीज जैसे कैरम खेलना, एंड सर समटाइम आई एंजॉय कुकिंग आल्सो। कैरम खेलना? यस सर। अच्छा, कैरम के अंदर स्टैंडर्ड अकॉर्डिंग कितने गोटीज होनी चाहिए, स्टैंडर्ड क्या है? यस सर। सर उसमें 9 वाइट, जो 9 वाइट कलर की गोटियां होती है, 9 सर ब्लैक कलर की, एक क्वीन होती है सर। 9 होती है या 13 होती है? नो सर, सर जो स्टैंडर्ड गेम होता है उसमें सर 9 गोटीज से ही प्ले किया जाता है सर गेम को। चलिए ठीक है, 4 लोग रात को 11 बजे चौराहे पर कैरम खेल रहे थे, पुलिस Yes, आई, sir. चारों को पकड़ लिया और कैरम के नीचे उनको जो है पैसे भी मिले, पैसे नोट मिले उनको, ठीक है? तो वो लोग जुआ खेल रहे थे, ऐसी बात उन्होंने पुलिस के सामने कन्फेस कर ली। इस Yes, sir. कन्फेशन की एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी? और पुलिस जो अगर इसको साबित करना चाहती है तो पुलिस को कौन सा सेक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा? दोनों एंगल से बताएं। तो सबसे पहले तो सर ये जो कन्फेशन है वो हिट करेगा सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि पुलिस को दिया हुआ कोई भी कन्फेशन सर वो वैलिड नहीं होता है सर, उसको प्रूफ नहीं किया जा सकता है। और सर इसको पुलिस अगर चाहे तो सर एज ए स्टेटमेंट यूज कर सकती है, बट एज आई थिंक सर एज ए कन्फेशन इसको यूज नहीं किया जा सकता है सर। सेक्शन 27 में नहीं क्या, पुलिस ने बकायदा कैमर क्या वो जो कैरम था वो रिकवर कर लिया था अरेस्ट करते समय ही, और वो जो नोट थे वो भी जब्त कर लिए थे, तो डिस्कवरी नहीं हो रही यहाँ पे, तो डिस्कवरी तो क्या सेक्शन 27 नहीं आ सकता? सर डिस्कवरी जहां तक सर मैं अभी रिमेम्बर कर पा रहा हूँ, रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, डिस्कवरी तब होती है जब अक्यूज को इंफॉर्मेशन देता है और उसके बाद पुलिस की चीज को रिकवर करती है। चलिए ठीक है, वी हैव डन विथ योर मॉक, यू मे गेट रिलैक्स नाउ। सबसे पहले तो बताइए कि आपने कौन कौन से बिंदु ऑब्जर्व किए जो आपको अपनी तैयारी में कमी लग रहे हैं? सर जैसे कि सर ने जो वो क्वेश्चन पूछा सर, वो मैं आई थिंक सही से मैं सुन नहीं पाया था, रिफ्यूजल वाला सर पॉइंट की जो बेल वाला सर ने पूछा था, मैंने सर उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया। आई थिंक कि सर ने पूछा कि क्या बेलेबल ऑफेंस में बाद में कैंसिल किया जा सकता है, मैंने पहले की कंडीशन बताई थी, तो सर वहां पे वो नहीं होना चाहिए था, मैं सर वहां पे गलत हो गया है आई थिंक वहां पे। ये आपका कॉन्सेप्चुअल गलती था यहाँ पे।
हो सकता है आपने बाद में इसको करेक्ट किया हो, है ना, क्योंकि देखो जब तक बेल ग्रांट ही नहीं हुई है तो कंडीशन का तो सवाल ही नहीं आता। यस सर। और आपने उससे पहले कंडीशन को ब्रीच करने की बात कर दी। यस। तो ऐसे केस में क्या है कि सवाल का आंसर आप सही दे पाए नहीं दे पाए वो बात की बात हो गया। आपका जहाँ पे कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है वहां पे ध्यान रखना है। फिर जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल दिया फिर आपको तुरंत समझ में आ गया। तो कई बार हमें इन बातों का थोड़ा ध्यान रखना होता है, ठीक है। दूसरा ये कि मुझे ऐसा लगता है आपने कई मौके छोड़ दिए। आपसे शुरुआत में ही मृदुल सर ने सवाल पूछा रेस्टिट्यूशन का, पूछा ना। यस अब सर। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मतलब आप डील करते समय कई सारे कॉन्सेप्ट को समझा सकते थे। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी, उसी से इसका ओरिजिन होता है। क्या आपने बोला, नहीं बोला। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर जब आप कैंसिलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हो, जब या रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो, सेक्शन 30, सेक्शन 33 इसी के एग्जाम्पल है। क्या आपने बोला, नहीं बोला। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 64, 65 जब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबिलिटी के ऑप्शन को वॉइड डिक्लेयर करवा देते हैं तो सामने वाले को इक्विटी करना पड़ता है, रेस्टिट्यूशन करना पड़ता है। क्या आपने बोला, नहीं बोला। जबकि ये पॉइंट आप इतने सारी जगह से क्या कर सकते थे, कनेक्ट है जो कर सकते थे और बोर्ड को इसकी जगह इंप्रेस कर सकते थे। इन सबको अगर छोड़ भी दो तो सीपीसी का सेक्शन 144 भी आपने इस्तेमाल किया, नहीं किया, जबकि आपको वो पता था। 144 पता है ना, रेस्टिट्यूशन का मामला आपको। सर 144 बस बोला था मैंने सर, बोला था आपने, तो दैट्स अ गुड थिंग। तो क्या करना चाहिए कि हमें एक्सप्लेन करते समय उसके ओरिजिन को, जब आपको कोई भी ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसको आप एग्जाम्पलीफाई कर सकते हो कई सारी अलग अलग चीजों से, तो वो आपके सामने ओपन मैटर है। इस तरह के सवाल आते हैं ना, रेस्टिट्यूशन को समझाओ, तो ये ओपन मैटर है। आप इसको जहां मर्जी जहां पर लेके जाओ, जहां पे लॉजिकल रिलेवेंसी होनी चाहिए, लीगल रिलेवेंसी होनी चाहिए। इससे क्या होता है, देखो इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू अपने नॉलेज को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करने का तरीका है ना। तो अपने नॉलेज को प्रेजेंट करने के लिए थोड़ा लीड आपको भी करना पड़ेगा। हर बार बैट्समैन अच्छी बॉल का इंतजार नहीं करता, कई बार टेढ़ी मेढ़ी बॉल भी जा रही होती है तो वो क्रीज से बाहर जाके उसको शॉट लगाता है, लगाता है कि नहीं लगाता है। तो आपको भी इंटरव्यू में कुछ जगहों पर ऐसा बैट्समैन बनना पड़ेगा जहां पे मौका आता। वहीं पर कुछ जगहों पे मैं आपसे बहुत इंप्रेस भी हूं, जैसे आपने सेक्शन 27 को जिस तरीके से किया, दैट्स अ गुड थिंग। स्टेटमेंट पहले आना चाहिए डिस्कवरी से पहले, तभी सेक्शन 27 लागू होगा। तो मेरे उलझाने पर भी आप नहीं उलझे, दैट्स अ गुड थिंग। ओके, और ये चीज कौन सी, देखो यहां पर आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर था ना तो आप अटकते नहीं हो। जहां पे हम लोगों ने कॉन्सेप्चुअल का लिंकिंग नहीं किया, आपने मेरे ख्याल से इससे पहले कभी भी रेस्टिट्यूशन को इस तरीके से लिंक किया ही नहीं था, नहीं किया ना। नहीं, अब किया होता तो ये आज आपकी प्रेजेंटेशन में एक अलग रोल प्ले करता। यस और नो? यस, दैट्स व्हाई कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग इज एसेंशियल। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और बाकी चीजें ठीक है, आप मतलब यहाँ पर जो है एकदम वेल ड्रेस हो, वेल ग्रूम हो, लेकिन आप यंग कैंडिडेट्स हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अपना टेम्पो बना के रखना है पूरे इंटरव्यू के दौरान। ओके, डिग्निटी ऑफ द बोर्ड मस्ट बी मेंटेन एट एवरी कॉस्ट। रेस्ट, आई एम हैप्पी विथ यू सर, प्लीज। हाँ, देखिए आपने उसका आंसर एकदम सही दिया था, व्हेन बेल कैन बी रिजेक्टेड इन बेलेबल ऑफेंसेस। इन्होंने आंसर ठीक दिया था कि यदि कोई ट्रायल चल रही है बेलेबल ऑफेंस के अंदर, उसके अंदर वो डेट और टाइम पर नहीं आए हैं, उस कारण से उसकी बेल जंप हो गई है और अगली पेशी पर वो वापस आता है तो कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है। लेकिन पहली पेशी पर यदि वो बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी तो बेल लेनी कोर्ट के लिए मस्ट है, क्योंकि 436 के अंदर बेलेबल ऑफेंस है ना, तो उसको बेल ली जा सकती है। लेकिन उसी केस के अंदर दोबारा जब वो अपीयर होता है और उसको कहते हैं फलाना तारीख पेशी पर आप आओगे और उस दिन वो नहीं आया और बेल जंप हो गई, और बेल जंप होने के बाद के अंदर वापस यदि वो एप्लीकेशन लगाता है तो कोर्ट का डिस्क्रिप्शन वो चाहे तो खारिज कर सकती है। तो आपने इसका क्वेश्चन सही समझ करके आपने दिया था, लेकिन बाद में आप वो ट्रैप हो गए कैंसिलेशन ऑफ बेल और उसके अंदर आप ट्रैप हो गए थे। कोई बात नहीं, वो बाकी आपकी स्टडी बहुत अच्छी की हुई है, आपने ईपी रोयप्पा का केस बहुत ही अच्छा बता दिया आपने। लेकिन आपने कहा कि मेरा टेस्ट क्रिमिनल साइड में है, लेकिन क्रिमिनल साइड में होते हुए भी आप इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर इन क्रिमिनल केसेस के अंदर नहीं बता पाए। आप फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो ऑर्डर है ना, वो एक प्रकार का फाइनल ऑर्डर है, उसके अंदर हो सकती है रिवीजन, आपने उसके लिए मना कर दिया। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे तो उसके अंदर मेरे को थोड़ी लैकिंग लगी आपकी, क्योंकि प्रैक्टिकल के अंदर मैंने 279-304A के बारे में पूछा था आपसे। ये समन मामला है और 2 साल से कम तक की सजा भी है, तो आपको ये विजुअलाइज करना पड़ेगा जो आईपीसी की धारा है उनमें कितनी सजा है
और सजा के बिंदु पर ही अपन प्रोबेशन तय करते हैं। इसमें हालांकि 2 वर्ष की सजा होने के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मनाही है कि प्रोबेशन विल नॉट बी ग्रांटेड इन सच टाइप ऑफ केसेस, है ना। फिर मैंने एक आपको हिंदू निर्वसित वाला प्रश्न पूछा था, तो आप प्रश्न समझ तो गए थे, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो गए थे कि क्लास 1 में कौन है, क्लास 2 में कौन है। मदर जो भी लेडीज है वो सारी क्लास 1 के अंदर है, ये ध्यान रखिए आप, बेसिक फॉर्मूला। इसके अंदर 9 लेडीज है, वो सेक्शन 8 के तहत क्लास 1 में एयर है, और बाकी जो है वो सारे उसके अंदर है क्लास 2 में, तो उसके भाई बहन फादर क्लास 2 एयर है। तो इस केस में केवल मात्र मदर और उसकी वाइफ को ही पैसा मिलेगा और किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी आपकी स्टडी ठीक है, आपकी पढ़ाई भी अच्छी की हुई है, लेकिन समय पर वो चीज बाहर निकल के आनी चाहिए, इसकी थोड़ी आपको लिंकिंग लॉ करना है, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। अभिषेक Yes, जी, बिल्कुल। आपकी लीगल नॉलेज काफी अच्छी है, बस आप एक बार ये कोशिश करिए कि आप लीगल प्रोविजंस जो है उनको ब्रश अप करेंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो और बूस्टअप होगा और आप और अच्छे से आंसर्स दे पाएंगे। बाकी सब अच्छा है। सर मैं एक चीज, सर कैन आई आस्क समथिंग? यस सर मुझे एक चीज का मतलब थोड़ा डाउट होता है कि जैसे सर आई एम करंटली परसुइंग LLM फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो बोर्ड के सामने सर मुझे ये चीज डिस्क्लोज करनी चाहिए नहीं? मतलब मेरे साथ थोरो स्टडी अभी LLM में हो नहीं पाई सर, 1 ईयर का LLM है, एंड देन आई वाज ऑल प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एग्जाम, तो उतना अच्छा से मतलब सर मैं कर नहीं पाया हूँ LLM में, दे नहीं पाया सर। तो आई शुड डिस्क्लोज दिस फैक्ट कि फिर सर वो LLM वाले उस पे मतलब बोर्ड चली जाएगी, फिर मेरे से उस पे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं होने लगेंगे? देखो, क्वेश्चन करना बोर्ड की इच्छा है, उसको आप नहीं रोक सकते। यस सर। ऑनेस्ट एडमिशन अगर आप उसमें कर लेंगे ना कि सर कहीं की जुडिशियल प्रिपरेशन के साथ में मैंने अपनी एकेडमिक जर्नी को कंप्लीट किया, तो न चाहते हुए भी मेरा फुल फोकस जो है वो सिर्फ जुडिशरी पर ही रहा, मैं अपने एकेडमिक सिलेबस को एक बियॉन्ड एग्जाम उसको डील नहीं कर पाया। दैट्स वाई सर मैं इस केस के अंदर इसका जवाब देने में हाल फिलहाल जो है अनेबल हूं, लेकिन सर मैं एश्योर करता हूं कि आई विल डेफिनेटली अपडेट माई सेल्फ ऑल द सब्जेक्ट ऑफ माई मास्टर करिकुलम। क्योंकि देखो, योग्यता को छुपाना तो आप चाहे छुपा भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी योग्यता तो उनके सामने चली गई होगी, आपने फॉर्म में हाइड तो किया नहीं होगा, या हाइड कर रखा है? नहीं सर, वहां पे परसुइंग का कोई ऑप्शन नहीं था ना सर, वहां पे बस फाइनल आपने रिजल्ट मेंशन नहीं किया, ठीक है। हाँ, तो बस नहीं अभी सर। आपने कंप्लीट कर ली उसके LLM को? नहीं सर, मेरा अभी चल ही रहा है सर, बस इस ठीक है, सेकंड। परसुइंग बोलोगे तो आपसे इतना सवाल जवाब नहीं करने वाले। आपने कर रखी LLM तो थोड़ा स्पेशलाइजेशन में बातचीत, अभी स्टिल यू आर परसुइंग। 2022 में मतलब सर DLLB भी करा है, इसके बाद जस्ट मैंने LLM में एनरोल कर लिया था। नहीं, देखो, LLM करना अच्छा चीज है, एकेडमिकली इट्स अ गुड थिंग, और ये Yes. आपके जुडिशियल सिस्टम को, एक जुडिशियल ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने में हेल्प करेगा। अगर हम किसी Yes. चीज की मास्टरी हासिल करते तो नुकसान थोड़े ना होता है, तो उसको छुपाने का तो कोई इसमें जो है औचित्य नहीं बनता है। ओके, अब आपका डिस्कशन थोड़ा सा और होना चाहिए। ग्रुप बना हुआ है, डिस्कशन ग्रुप आपके कोई किसी के साथ डिस्कस कर रहे हो डेली बेसिस पे? हाँ सर, एक फ्रेंड है उनके साथ सर मतलब हाँ, डेली करते हैं, वो भी एक इंटरव्यू दूसरे दे से रहे हैं ना? एक दूसरे का मॉक लेते हैं सर। वेरी मतलब गुड, खुद वेरी गुड। तो डेली बेस पे जो भी चीज उसको डिस्कशन आप जरूर करें, और जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्चुअल लिंकिंग की बातें की, तो जहां पे जो टॉपिक लिंक होता है मस्ट डू। आपके खल्लास क्लासेस मैंने यूट्यूब पे डाल रखे, उसे रिवीजन कर लो एक बार, ताकि एक आत्मविश्वास आ जाए। ओके, चलिए, विश यू एक ऑल द चीज और बेस्ट।